Uh, today's today's टॉपिक इज़ बर्थिंग स्टाइल्स। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा बर्थिंग स्टाइल आपको सूट करेगा या आपके बच्चे के लिए अच्छा है या आपके लिए अच्छा है, ये वेबिनार आपके लिए है। कि वेदर आपको वजाइनल डिलीवरी कंसिडर करनी चाहिए, सिजेरियन के क्या प्रोज कॉन्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स है सिजेरियन सेक्शन के, कि वेदर आपका दूसरा बेबी है, पहला सिजेरियन हुआ था, अभी भी करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा, कितने सारे सवाल होंगे आपके मन में। ये वेबिनार वो सारे सवालों को आंसर करेगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करेगा। A warm welcome to Sushma ji. She is a certified childbirth and lactation educator. सुषमा जी हमारे साथ पिछले 2 साल से एसोसिएटेड हैं एंड हम दोनों वी वर्क वेरी हार्ड टू इंश्योर दैट सारे प्रेग्नेंट मदर्स को जो कन्फ्यूजन्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट करें। Thank you, Sushma ji, for being here today. आपका knowledge and information really helps every pregnant woman on the group and on these webinars. So let's start. Sure. Thank you so much, Saloni. And thank you, ReeLabs, for actually making this presentation, this webinar happen. And welcome to all my pregnant moms. Okay, I really hope you have a fantastic delivery. I really hope you have good stories to talk about your pregnancy and not horror ones. So, the fact is that we are talking about birthing styles in this webinar. Okay, before we go ahead, has any mother thought about it, or what is your thought about you? Would you like a normal delivery? Would you like a C-section because you don't want to go through labor? What can any mom just write something on the chat box or just say something? ये वेबिनार एक इंटरैक्टिव वेबिनार है। किसी भी टाइम आप हमसे बात करना चाहें, प्लीज़ यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड वी कैन अनम्यूट यू एंड टॉक टू यू। आपने अगर अपनी डिलीवरी के बारे में कुछ सोचा है कि कैसी डिलीवरी आप चाहेंगे, प्लीज़ शेयर विद अस। वी वुड लाइक टू नो कि आपने क्या सोचा है अपने माइंड में। Okay, so what I will do is मैं आपको एक example देती हूँ. Okay, मेरे मेरी एक बहन की एक फ्रेंड थी जिसने बोला मैं सी सेक्शन के लिए ही जाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे वो लेबर के थ्रू नहीं जाना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसने पहले से ही अपने दिमाग में वो बात ठान के रखी। शी वॉज ओनली प्रिपेयर्ड फॉर सी सेक्शन। नाउ व्हाट वी डिड वाज वी एनकरेज्ड हर टू अटेंड सम प्रीनेटल क्लासेस। प्रेगनेंसी क्लासेस होते हैं, हमने उसको बोला आप अटेंड करो, आप मदर हैं, आपको जो ठीक लगेगा आप वो कीजिएगा। एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ऑल द मिसकंसेप्शंस, जो सारी बुरी स्टोरीज उसने सुनी थी, वो सब हवा हो गई और वो लिटरली शी वेंट फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी only because she did not have information. So information helps us make the right decision and not just go on emotions. And this is actually which actually happened. So this webinar actually gets you information, the right information, the information which tells you what is scientifically right. उसके बाद डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो प्रॉपर होगी। So we'll start with our webinar. So the first thing that comes to what is birthing styles. Like all your birthing is basically giving birth, giving birth to a baby or a baby being born. We all know what birth means, right? But the fact is, what are the styles of it? There are so many. And as science evolves,
we also have a lot of other options. If in India, maximum in villages, because we are people in villages now more than, a lot. So maximum is either एक दाई माँ करेगी या एक होम बर्थ होगा, क्योंकि शायद उनके लिए हॉस्पिटल्स उतने ज्यादा अवेलेबल आज भी नहीं है. But what happens is that as science progresses and as we all have internet, even in villages, there is a lot of information being given. So first of all, let's start with what is birthing. So on the next slide, what I'm trying to show you is that what is birthing style. Birthing style is basically the approach, the method, like the method by which you give birth to your baby, the environment. I may be comfortable in a hospital with all the doctors, nurses with me, and somebody else may be happy having a home style environment where a mother is more comfortable. Also, whenever we are talking about all this birthing styles, health consideration is very important. If my pregnancy is going normal, my baby is of proper weight, my baby, can be delivered vaginally, that means एक normal delivery हो सकती है. और मेरा डॉक्टर अगर बोलता है कि वो मुझे encourage भी करता है कि नहीं, आपके प्रेगनेंसी के साथ सब कुछ ठीक है और आप बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, तो वो फैक्टर आपके दिमाग में आएगा. दूसरा, ऑफ कोर्स, आपके डॉक्टरों का आपकी रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं. अगर आपकी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, ओके, आपका बेबी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में बॉर्न हो सकता है, आपका डॉक्टर भी वही सजेस्ट करता है, तो डेफिनेटली आप वजाइनल डिलीवरी करेंगे. किसी किसी को सी सेक्शन करना पड़ता है कोई हेल्थ कंसिडरेशन की वजह से, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. दूसरा होता है पर्सनल बिलीफ, लाइक व्हाट डू आई बिलीव, शुड आई जस्ट गो फॉर अ सी सेक्शन, बात को खत्म करें. एज आई टोल्ड गेव यू एन एग्जांपल ऑफ अ मदर, बट my personal belief can change, if I have the right information. And of course, my previous birth experiences. If previously I've had a C section, now you may be scared to go for a normal delivery. Or previously I did it at home, but for some reason I know that I want a doctor or a full proper hospital environment for myself, then that is something you will consider. वो आपको सोचना है कि आपके लिए क्या सही है, और वो बेस्ट आप ही सोच सकते हैं. और बेस्ट ये होगा कि अगर आप जिसके साथ भी, आप जो आपके साथ, शायद आपके हस्बैंड होंगे, शायद आपकी सिस्टर होगी, शायद आपकी मदर होगी, जो हॉस्पिटल में आपके साथ होगी, तो हो सकता है कि आप उनके साथ भी ये डिस्कस करना चाहें. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, what are the styles which are actually there? So natural birth. Natural birth means क्या होता है? Normal delivery. Vaginal delivery है, बच्चा नॉर्मल वजाइना से क्या बोलते हैं निकलता है, प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन है, उसका सर बराबर है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है. उसमें क्या होता है, मेडिकल इंटरवेंशन मींस मेडिकल चीजें जो है वो काफी कम होती हैं. मेडिकल मतलब जैसे इंटरवेंशन, जैसे कि ज्यादा दखल अंदाजी नहीं जिसे कहते हैं, आप नॉर्मल देना चाहते हैं, तो वो ज्यादा करके होता है बर्थिंग सेंटर्स. नाउ व्हाट इज अ बर्थिंग सेंटर? अ बर्थिंग सेंटर इज वन in which you have the facility of a doctor, of a healthcare professional, but the environment is like comfortable, not like a hospital, and pain is managed more through breathing techniques. So the reason why we suggest
कि आप प्रीनेटल क्लासेस लीजिए। वो इसके लिए क्योंकि उसमें आपको ब्रीदिंग टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक, आपके पार्टनर को मसाज सिखाया जाता है, जिसमें वो उस तरह का मसाज करे जिसमें आपको रिलीफ मिले और आप ज्यादा मे बी क्या बोलते हैं, ज्यादा आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, एपिड्योरल्स की शायद जरूरत ना पड़े। एंड दोज थिंग्स विच आर मच मच मोर हेल्पफुल टू यू इन अ नॉर्मल डिलीवरी। ये सब तो जानते ही हैं हम कि आपको ऑफ कोर्स अगर एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता है। मे बी 2 या 3 दिन में आप घर चले जाए। एंड क्योंकि वो एक सी सेक्शन जो एक सर्जरी जैसी होती है, ऑफ कोर्स आपकी डिलीवरी जो है, आपकी पोस्ट डिलीवरी जो रिकवरी है, वो काफी बेटर होती है, काफी जल्दी होती है। ऑफ कोर्स एंड देन बेबीज के लिए भी वो बेटर है, क्योंकि उनको जो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, जो सांस लेने में तकलीफें हो सकती है, वो कम होती है। तो ये आपका एक नॉर्मल ऑप्शन है जो मैक्सिमम मदर्स एटलीस्ट इन आवर विलेजेस यूज। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स अनफॉर्चुनेटली उनको ये सब नहीं पता होता है, कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, कौन से मसाजेस हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं, कौन सा एनवायरमेंट है जो इनको हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ज्यादा लोग अपने आजू बाजू नहीं चाहिए जब मेरी डिलीवरी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि वो एक इंसान मेरे साथ हो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा करीब है। ये आपको डिसाइड करना है, बट दिस इज इंफॉर्मेशन दैट वी गिव, बिकॉज दिस विल हेल्प यू डिसाइड whom you want to be with. You don't want to be with somebody जो आप अगर चिल्ला रहे हो वो आपके साथ चिल्ला रहा हो। आपको वो नहीं चाहिए। सेकंड में ऑफ कोर्स हमारा सी सेक्शन आता है, जो काफी माओ को लगता है कि शायद मैं ये पेन ना बर्दाश्त कर सकूं, उससे तो अच्छा है कि मैं सर्जरी करवा लूं, मेरा बच्चा डिलीवर हो जाए। और मुझे वो, ये हम सबसे ज्यादा इसके लिए सोचते हैं क्योंकि हमने सिर्फ बुरी कहानियां सुनी। We only listen to stories which where the, for that matter, even in movies they show it like that. A woman is screaming this that and you're scared of it. So what we suggest is have information with you and then you decide. So then of course C-section is a surgical delivery, एक surgery है. The incision that is made is on the mother's stomach and her uterus. So the baby is delivered by making an incision along the stomach and the uterus. So it's a proper big surgery. This usually happens if you have a breech baby. A breech baby is जिसमें जिस बेबी की टांगे नीचे हैं, सर ऊपर है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में क्या होता है, बेबी जो है ये आपका वजाइना और बेबी का सर ऐसा होता है, जिस बेबी का डिलीवरी आसान हो जाता है। तो हो सकता है अगर आपको ट्विंस हो रहे हो तो सी सेक्शन की जरूरत पड़े। ब्रीच बेबी, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे की टांगे नीचे होती है, सर ऊपर होता है। प्लेसेंटा प्रिविया वो होता है जिसमें जो प्लेसेंटा होता है, जो बेबी को और माँ की कनेक्शन होता है, एक कॉर्ड होता है, जब वो प्लेसेंटा यूट्रस को कवर करने लगता है, चाहे आधा या पूरा, उसमें हो सकता है कि एक सी सेक्शन की जरूरत पड़े। बट सी सेक्शन आपको और आपके डॉक्टर को उस वक्त डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि नहीं, बच्चे को तकलीफ हो सकती है या आपको तकलीफ हो सकती है, तो वो सी सेक्शन के लिए जाते हैं। तो ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप ये बात जानेंगे तो आप डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स सी सेक्शन बीइंग अ मेजर सर्जरी, okay, you'll have a longer recovery,
and you'll have a longer hospital stay. There'll be stitches, of course. So it is performed under regional or general anesthesia. आपको anesthesia दिया जाएगा या तो उसी region के लिए या तो overall आपको general anesthesia जाए. ये help कर सकता है अगर आपका labor बहुत ज्यादा लंबा चल रहा है या आपकी बेबी को अंदर कोई ना कोई तकलीफ हो रही है. अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर्स आपको सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं. इसमें थोड़े रिस्क है, जैसे ऑफ कोर्स सर्जरी, किसी भी सर्जरी में ये रिस्क होता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, या फिर आपको आने जाने में आपकी फिजिकल एक्टिविटी में रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, ऑफ कोर्स क्योंकि वो सर्जरी है. बट the good part nowadays is that when you have a C-section also, doctors do make the the stitches and all in such a manner, and they encourage you to do physical activity. Of course, it's still going to be limited. So these are the differences when we talk about a normal delivery and we talk about a C-section. Now the thing is that there are so many other things that can come in between, like water birth, a new, not a really new concept, but this is now being adopted. If a mother wants a water birth, there are some birthing centers which can actually help you in a water birth. Water birth क्या होता है? आपका एक we will I just saw your question on chat, and we will definitely inform you about that also. That is coming later in our presentation. So for example, water birth is where it's a specially designed tub or pool of water. And trust me, in Mumbai, we have very good doctors who can actually help you with this. So in case you ever want to go for a water birth, I can always suggest a doctor to you who's extremely good at this. So active stage of labor, when a mother is going through that active stage of labor, she can actually spend it in water where the water is warm, not hot. Water should be warm and at body temperature. So what happens is that warm water, when you're sitting in that warm water as a mom, it helps you to sort of help your uterus be a little softer. It's beneficial for low risk pregnancy, of course. If your doctor says you don't have a high risk pregnancy, low risk hai, everything is fine, so then water birth is advised for that. Water birth provides relaxation in the mother and helps in inducing labor. वो मदर को रिलैक्स करता है और लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से मदर को थोड़ा बेटर बेनिफिट मिलता है. एंड टेक्निक ऑफ वाटर बर्थिंग इज जेंटल फॉर बेबीज ऑल्सो. प्लीज इस चीज में मत रहिएगा कि मेरा बेबी जो है वो अगर वो पानी में पैदा हुआ तो वो डूब ना जाए. ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ओके, तो ये दिमाग में बात अपने निकाल दीजिएगा. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट वाटर बर्थ, we can always help you with it. But this is something which a lot of mothers have now started adopting. And you can still post your questions on the chat group if you want to know more about water birth. Coming up to our next thing, home birth. जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे इंडिया में तो मैक्सिमम यही है. A lot of mothers nowadays, even in an urban setting, want a home birth or want something similar to home birth. So home birth क्या होता है? Home birth is you're giving birth to your baby at home rather than in a hospital. Okay, nowadays of course in urban areas, जैसे cities जो होती हैं, ladies prefer like a birthing center or a hospital
बिकॉज आपको मालूम है कि डॉक्टर्स वहां पे होंगे. इट्स अ familiar setting, so you know you have your stuff around you, your things around you. और दूसरी बात, again, this is in low risk pregnancy. If it's a high risk pregnancy, home birth is not recommended. There is a high chance of vaginal delivery, of course, and it's assist here. Even here, you can have like a certified midwife. Midwives जैसे दाइयां होती हैं, but certified one, जिसने इसमें कोर्स किया है, जिसमें इसने एजुकेशन लिया है, और अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. इसमें ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं जिसमें आपको शायद होम बर्थ ऑप्शन नहीं होगा, एंड इट्स ओके. जैसे मैंने आपको प्रीवियस सी सेक्शन में बोला, अगर आपकी बेबी ब्रीच बेबी है तो आपको प्रेफरेबल होगा कि मैं एक हॉस्पिटल सेटिंग में हूं जहां पे अगर सी सेक्शन करना पड़े तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है आपके साथ. तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा. और ये भी ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े अगर कोई बात या कॉम्प्लिकेशन हुई है तो. तो ये चीजें प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा, एंड अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट कीजिएगा. आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आपका डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस करेगा. एंड हम हमेशा बोलते हैं, हम एडुकेटर्स हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम आपसे बातें कर सकते हैं, पर आपका डॉक्टर आपकी केस को जानता है. प्लीज उनकी एडवाइस सुनिएगा. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, वी बैक. वी बैक किसे कहते हैं? वी बैक उसे कहते हैं जिसमें आपका पहले सी सेक्शन हो चुका है. सो फॉर मदर्स who've had a C-section before, who are delivering again, but this time do not want a C-section, VBAC is called vaginal birth after cesarean. So if on for your second baby, a mother feels that I can actually go through a vaginal delivery, we will support you. We will help you. We will help you with if your delivery is, if your pregnancy is normal, we will help you with the proper exercises. We will help you with the proper diets. But even then, you got to understand that there are some things which happened in the previous C-section. Like for example, अगर आपका इंसेशन ऐसा है जो पिछली बार आपके फर्स्ट बेबी या सेकंड बेबी के टाइम पे भी हुआ, एंड इस डिलीवरी में, इस लेबर में अगर उसको हार्म हो सकता है, तो शायद आपका डॉक्टर वेजाइनल बर्थ नहीं सजेस्ट करेगा. तो ये सब चीजें, बट ये बात पक्का है कि वेजाइनल बर्थ सी सेक्शन के बाद सेकेंड बेबी में पॉसिबल है. तो आप अपने ऑप्शंस वो ओपन रख सकते हैं. अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि नहीं, इसमें आपके प्रीवियस इंसेशन को या प्रीवियस कट जो सी सेक्शन के टाइम पे हुआ है, अगर उसको कोई हार्म नहीं होगा और आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं, देन यू कैन गो एंड यू कैन मेक दैट डिसीजन. बट अपने डॉक्टर से जरूर बात करें. ओके आपके डिपेंड करता है कि अगर आपका इस वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ओके और अगर आपका वो जो प्रीवियस इंसेशन है उसका रप्चर नहीं होगा, मतलब वो खुल नहीं जाएगा, तो आप वीबैक के लिए बिल्कुल जा सकते हैं. मैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मदर्स गो फॉर वीबैक, एंड ट्रस्ट मी, they were much more happier that they went, but only after they took the advice of their healthcare provider or their doctor. So whatever decision you make, please see to it that it's informed. Informed means you know and you are taking the right decision, and in case something goes wrong and your doctor has to do a C-section, okay, believe me, be proud of yourself that you tried. आपने पूरे दिल से ट्राई किया
अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ और आपकी बेबी की हेल्थ। मैं हमेशा अपने मदर्स को बोलती हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली यही है कि आपकी हेल्थ कैसी है, और दूसरी बात आपका बेबी सही सलामत, बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड एज अ मदर you should be proud that you tried. Always feel that in your heart. So so the last one that we are coming to is assisted birth. We have a lot of doctors in Mumbai, specialists who are experts in assisted birth. Assisted birth क्या होता है? जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, forceps या वैक्यूम, उसमें क्या होता है? Baby is delivered through the vagina. It's a normal delivery, but it's an assisted one. Assisted one is where, finally, for some or the other reason, like मदर पिछले 12 घंटे से लेबर में है और वो थक गई है, वो ट्राई कर करके थक गई है, बट बेबी इज नॉट शोइंग अप फॉर वट एवर रीजंस। उसमें जो डॉक्टर्स है वो फॉरसेप्स, जो स्पेशली डिजाइंड है, बाय द वे, स्पेशली डिजाइंड for removing, delivering a baby. So it's either a forceps or a vacuum extractor, जिससे वो लोग बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। This is a gentle procedure. Okay, this should be done only by doctors who are very familiar and specialist in this. I know of a few doctors who are very good in Bombay in this. But the fact is that you got to have a proper guy who knows how to get your baby delivered through this. So it is basically a use of medical instrument to assist in vaginal delivery of your baby. This could be done where either the doctor feels that baby is in danger, or mother is very exhausted. जो मॉम है वो इतनी थक गई है कि उनमें अभी ताकत ही नहीं बची है पुश करने की, वो बिल्कुल उनकी एनर्जी खत्म होती जा रही है, उनकी, या हो सकता है कि उनकी ब्लीडिंग हो रही हो या जो भी रीजन हो। इसमें ऑफ कोर्स सी सेक्शन का रिस्क रिड्यूस होता है। एंड यहाँ पे डॉक्टर्स ये देखते हैं कि जो मदर है उसकी क्या हालत है, जो बच्चा है उसकी क्या हालत है। हमें जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें मदर एंड बेबी हमें दोनों को संभालना है। एज आई टोल्ड यू, इसमें जो स्किल है, एक्सपर्टीज है डॉक्टर का, वो बहुत जरूरी है। सो जब भी आप ये सब चीजें सोचते हैं, आई टेल यू हाउ टू नो हाउ टू राइट ऑल दिस। जब भी आप सोचते हैं, प्लीज ये सब सोचिए। एंड ये हम इंफॉर्मेशन आपको इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई भी चीज आपकी डिलीवरी टाइप हो सकती है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास उस बात का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास उस बात का नॉलेज है, सो देन यू कैन टेक अ डिसीजन। नाउ आई टेल यू हाउ टू अक्यूमुलेट दिस इंफॉर्मेशन। मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, हम कैसे करेंगे। सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, पहली बात तो चलो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। किसी मदर ने शायद हमसे पूछा कि भाई कौन सा पोजीशन होना चाहिए। अगर आप ये देखेंगे तो ये सारे पोजीशंस है, बर्थिंग पोजीशंस। ओके, ना क्या होता है, चाहे एक्टिव लेबर है, जो जिसमें आप आप उस स्टेज पे है, जैसे जहां पे आप डायलेटेड है पर बहुत कम डायलेटेड है, आपका लेबर स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इसमें डिफरेंट बर्थिंग पोजीशंस में, जैसे एक मदर स्क्वाट कर रही है चेयर का सपोर्ट लेके, या वो स्क्वाट कर सकती है अपने हस्बैंड का, अपने कोई भी रिलेटिव का, जिसका भी, डॉक्टर का, नर्स का, डूला का सपोर्ट लेके। ओके, दूसरी बात आप देख रहे हैं कि वो ऑन ऑल फोर्स है, मीन शी इज ऑन हर नीज एंड हैंड्स। सो ग्रेविटी हेल्प्स। ग्रेविटी इज वेयर द बेबी इज कमिंग डाउन।
ग्रेविटी, आपको मालूम है ग्रेविटी क्या होती है, हर चीज को नीचे खींचती है. ओके, और योर मदर और द मदर इज सिटिंग ऑन अ बॉल बिकॉज दैट मोशन, दैट ग्रेविटी हेल्प्स अगेन. So these are all the different positions and it depends on your comfort. जैसे आप मदर है, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है. हो सकता है आपको वो बॉल पे बैठना अच्छा लगे, हो सकता है आपको नील डाउन करना अच्छा लगे, हो सकता है कि आप ऐसे जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ऐसे सपोर्ट लेके आप स्क्वाट करने की कोशिश कर रहे हैं. एनी ऑफ दीज पोजिशंस कैन हेल्प यू. So coming on to our next screen, so these are the all the you know the descriptions like all fours. जैसे मैंने बोला hands and knees on your side. कभी कभी ये होता है कि आप lie down कर रहे हैं पर आप अपने साइड पे हैं और आपका दूसरा पैर जो है वो आपने ऐसे करके रखा है, बेसिकली टर्न करके रखा है. ओके. दूसरा ये भी हो सकता है कि आप बेड फ्रेम को पकड़ के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने पार्टनर को पकड़ के कर रहे हैं, या आप एक बर्दिंग बॉल पे बैठे हैं बट सपोर्ट के साथ. ओके. दूसरी बात, आप एक कुर्सी का सपोर्ट ले रहे हैं, आप एक क्या बोलते हैं, एक पार्टनर का सपोर्ट ले रहे हैं. सो दीज आर ऑल द पोजिशंस दैट कैन हेल्प यू इन birthing your baby. Okay. Of course, there are some things which you cannot do in a C-section because आप हो सकता है तभी आप वो नहीं कर सके. हो सकता है कि अगर आपको एपिड्यूरल दिया गया हो, एक एपिड्यूरल होता है जिसके थ्रू आपको मेडिसिन आपके बैक में दी जाती है, बट आजकल एपिड्यूरल भी ऐसे है जिसमें आप शायद बैठ भी चल सकते हैं, चल भी सकते हैं थोड़ा सा विथ सपोर्ट. एपिड्यूरल वो होता है जिसमें आपका नीचे का पोर्शन नम किया जाता है, उसके थ्रू पेन मेडिसिन दी जाती है. सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर अ मदर. So on our next screen, see now, if so basically we spoke about all the different birthing options, right? अभी इसमें जैसे जैसे हमने किसी मॉम ने हमसे पूछा नेचुरल बर्थ में हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वाटिंग कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला सपोर्ट लेके स्क्वाट कीजिए, हैंड्स एंड नीज पे रहिए, आप चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, आप एक बॉल पे बैठ सकते हैं. ये होता है जब एक नॉर्मल बर्थ हो रहा है. अगर आप एक वाटर बर्थ में हैं तो आप पानी में बैठे हैं, आप सेमी रिक्लाइन कर रहे हैं, मीन्स आप थोड़ा लेटे हुए हैं, नॉट कंप्लीटली. उसमें भी आप या तो फ्लोट कर रहे हैं या तो फिर आप स्क्वाट कर रहे हैं वैसे ही, जैसे ऑन ऑल फोर्स अपने हैंड्स एंड नीज पे. अगर आपका होम बर्थ हो रहा है या वी बैक हो रहा है, लाइक वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, तो उसमें आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो नेचुरल बर्थ में है. जैसे आप स्क्वाट कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप बॉल पे बैठ सकते हैं. जहां पे हॉस्पिटल बर्थ होता है, जैसे मैंने आपको कहा एपिड्यूरल अगर देते हैं, वो आपके पीठ में एक इंजेक्शन देके वहां से एक दवाई डाली जाती है. ओके. तो उसमें आप सेमी सिटिंग बैठ सकते हैं. सेमी सिटिंग ये होता है कि आप ऐसे बैठे. ओके. एक होता है आपका लाइथोमी. ओके. लाइथोमी होता है जैसे आपने लाइथोटोमी करके जहां पे आप क्या बोलते हैं, जिस तरह से यू आर sitting like that, that happens in C-section only or in assisted birth. Okay. Or you can also be squatting or on a birth stool. Okay. And C-section is supine with a slight tilt. Supine means आप ऐसे हैं, ऐसे, आप lie कर रहे हैं बट आप थोड़े से ऐसे टिल्ट के साथ है. So that also helps you. An assisted birth is again lithotomy or semi-sitting. You're not sitting completely, but you're semi-sitting. So all of these things can actually help you with
all of these different birth positions, okay, or these delivery methods. You have to, that is the reason we suggest that as mothers, please attend classes because you will come to know of all of these things. And of course, as an educator, uh, even I can help you with this in case you ever want to know about all this. Coming to our last, basically, our main important thing, we teach our mothers how to write a birth plan. A birth plan is what? A birth plan is basically writing down how you want your delivery to go. Today, if, just say for example, I'm a pregnant mother, okay, and I want a particular setting in which I give birth to my baby. हो सकता है मेरे को एक बर्थिंग सेंटर में जाना हो सकता है मुझे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट ना अच्छा लगता हो, ओके। सो हम क्या सजेस्ट करते हैं मॉम को कि भाई अगर समझो आपको एक बर्थिंग सेंटर चाहिए, बट आपको चाहिए आपका डॉक्टर भी वहां पे हो, तो आप ऐसा डॉक्टर चूज कीजिए, ओके। आई नो ऑफ अ फ्यू बर्थिंग सेंटर्स जिनका, ट्रस्ट में, आपको हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ही नहीं लगेगा। वो आपको उनका रूम होता है जहाँ पे वो मदर्स को एनकरेज करते हैं खाना खाने के लिए। वो सेटिंग इतनी स्वीट होती है कि आपको लगेगा कि मैं हॉस्पिटल में हूं ही नहीं। And trust me, I have seen those mothers, they are much, much more happy over there in case, and there are very good doctors who can actually perform a C-section. But when the mothers are in their room or they are encouraged to eat with other mothers after delivery, that room is so cute. आपको लगेगा मैं एक sweet से lobby, जैसे बोलते हैं ना, एक sweet से room में बैठी हूँ where I've got proper food, healthy, good, tasty food. So it depends आपको क्या, आप क्या सोचते हैं जब आप वो डिलीवर करना चाहते हैं अपनी बेबी को। क्या इंपॉर्टेंट है आपके बर्थ प्लान में? आपके मेडिकल टीम का कॉन्टैक्ट इन्फो, आपके डॉक्टर का, आपके डूला का, आपके ऑफ कोर्स हस्बैंड का, आपके सिस्टर का, आपके फ्रेंड का, जो भी आपके साथ होना चाहती है। हॉस्पिटल और बर्थिंग सेंटर, ऑफ कोर्स उनका नंबर चाहिए। आपके बर्थ पार्टनर का, आपके साथ कौन होगा जो आपके साथ हॉस्पिटल में होगा, जो शायद आपके साथ डिलीवरी रूम में भी होगा। प्रेफरेंसेस ड्यूरिंग लेबर मींस आप कौन सी पोजीशन, आप, जैसे एक मॉम ने हमसे पूछा, ऐसी कौन सी पोजीशन है जो आपको, क्या बोलते हैं, आप फील करते हैं कि आपके लिए हेल्प होगा। मे बी यू वॉन्ट अ बर्थिंग बॉल इन योर रूम, पेन मेडिकेशन, ओके। सो आई एज अ pregnant mom want to deliver vaginally, but am I open to epidural? क्या मुझे चलेगा अगर मुझे एपिड्यूरल होगा तो? लेबर इंडक्शन, अगर समझो मेरा लेबर इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर कोई मेडिसिन देना चाहता है, एम आई ओपन टू दैट? ये सब आप लिखिए। प्रेफरेंसेस फॉर गिविंग बर्थ, ओके, कौन सा एनेस्थेसिया, अगर इमरजेंसी होती है तो किससे बात करें, वो शायद आप उस वक्त बात करने के हालत में ना हो, तो कौन है जो आपकी तरफ से बात करेगा। एपिसियोटोमी वर्सेस पोटेंशियल टेयर, अगर समझो आप वजाइनली दे रहे हैं, ओके, आपका अगर टेयर होता है तो आप उसमें कैसे करना चाहेंगे, उसको कैसे, क्या बोलते हैं, आप उसको स्टिचेस होगा या जो भी है, आप वो क्या प्रेफर करेंगे। आप क्या प्रेफर करेंगे जैसे ही आपका बच्चा होता है कि पहले पहले कौन आपके बच्चे को हाथ लगाए आपके ऊपर। हम तो सजेस्ट करते हैं कि पहले पहले माँ उसकी छाती पे रखना चाहिए बच्चे को। कौन से मेडिकल प्रोसीजर्स है जो बेबी के ऊपर उस वक्त नहीं करने चाहिए। जैसे मेरे बेबी के ऊपर काफी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे ही वो पैदा होता है कि भाई उनके लंग्स में फ्लूइड है कि नहीं, बच्चा बराबर है, और बेबी इज ब्रीदिंग, a lot of times, even then
दैट एक प्रिक हील टेस्ट होता है, तो हो सकता है कि कोई 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 इंजेक्शन है जो बेबी को देना है। सो लॉट ऑफ टाइम्स नाउ डेज पेरेंट्स सोचते हैं कि वो पहले, अगर बेबी बिल्कुल ठीक है तो पहले पहले उसे अपनी मॉम के चेस्ट पे रखना चाहिए और बाद में ये सब प्रोसीजर्स करने चाहिए। कोई कोई बोलता है नहीं, पहले आप प्रोसीजर्स करो। एंड आप क्या चाहते हैं कि बेबी आपके साथ उसी रूम में रहे, बेबी आप ही के पास हो, ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। लास्ट में ऑफ कोर्स आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, अपने डूला से बात करना चाहिए। आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, आपको डायबिटीज है क्या, आपको हाइपरटेंशन है क्या, आप ट्विंस को पैदा कर रहे हैं क्या, ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपका रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, आपके प्रेगनेंसी में अगर रिस्क है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ कौन रहेगा हॉस्पिटल में, आप जब वापस आएंगे तो कौन आपको हेल्प करेगा बेबी के साथ, कौन है फैमिली में, फ्रेंड्स में जो आपको उस वक्त हेल्प करेगा जब आपको लिटरली अपना और बेबी का ख्याल रखना है। वी ऑलवेज सजेस्ट आप चाइल्ड बर्थ क्लासेस प्लीज अटेंड कीजिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू एंड आई कैन हेल्प यू विद इट पर्सनली। एंड विजिट योर बर्थिंग लोकेशंस। आप अपने हॉस्पिटल में कौन से रूम प्रेफर करेंगे, आप बर्थिंग सेंटर है तो आप कैसा एनवायरनमेंट प्रेफर करेंगे, प्लीज इन चीजों को लिख डालिए। ट्रस्ट मी, बर्थिंग प्लान कोई बड़ा बात नहीं है, बट आपको बहुत हेल्प करेगा जब फाइनली आपकी डिलीवरी हो रही। एंड चाइल्ड बर्थ क्लासेस, कौन सी मसाज टेक्निक्स है जो आपका पार्टनर आपको हेल्प कर सकता है, कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको बहुत मदद करेगी। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस वेबिनार फॉर यू। थैंक यू सो मच। एंड Thank दिस you, Sushma ji. This was so nice, so informative. And I'm sure that whoever has attended today, उनके answers के queries उनको मिले होंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं जो शायद उनको पता भी नहीं था कि उनके डाउट्स हैं, लेकिन वो आज क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन है इन द चैट बॉक्स, नॉर्मल डिलीवरी जल्दी हो जाए हॉस्पिटल में तो क्या पोजीशन होना चाहिए? मतलब मतलब क्या पोजीशन होना चाहिए मींस, So she's काइंडली trying to, क्लैरिफाई। I think what she's trying to say is कि if the mother wants a normal delivery in the hospital, what is the suggested position so that it is quick and easy? So, as I showed in my slides also, there are many positions. Like a lot of mothers actually prefer being on a birthing ball. जो आपने birthing ball देखा है, okay, a lot of mothers feel that that helps them because it gives a rocking movement and plus it helps with gravity also. A lot of mothers feel कि डॉक्टर सजेस्ट करते कि आप बाथरूम होकर आइए, बिकॉज क्या होता है आपका ब्लैडर फुल होता है। तो जब आपका ब्लैडर फुल होता है तो आप बाथरूम होकर आएंगे, वो भी आपको हेल्प करेगा। ओके, दूसरी बात, आप क्या बोलते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, अपने सपोर्ट के साथ आप वॉकिंग कर सकते हैं। ओके, आप क्या बोलते हैं, स्क्वाटिंग कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प यू विथ अ नॉर्मल डिलीवरी। You can actually tell your husband to, also sometimes if your back is hurting, or you can, आप ऐसे एक बेड फ्रेम को पकड़ के आप ऐसे थोड़ा टिल्ट करके और आपका हस्बैंड आपको मसाज दे रहा है, ओके, वो भी हो सकता है। तो वो भी चीजें आपको हेल्प कर सकती है एक नॉर्मल डिलीवरी। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई और कुछ पूछना चाहेगा? वरना हम ये सेशन बंद कर देंगे। आई होप अगर आप कोई सबको फादर है पसंद जो पूछना या चाहते हैं कुछ, ओके, अगर यहाँ कोई मॉम है जो, अगर एक फादर है ऑफ कोर्स जो अपने वाइफ को सपोर्ट करना चाहते हैं, पार्टनर को, क्या उन्हें कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं।
एंड आई होप आप सबको पता है रीलैब्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में। हमारे ग्रुप्स फ्री हैं, हमारे ग्रुप्स मंडे टू सैटरडे ओपन रहते हैं डिस्कशंस के लिए, क्वेरी सॉल्विंग के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए ऑन आवर वेबसाइट। यू कैन कांटेक्ट अस वाया वेबसाइट, you can contact us via Instagram. We are on Instagram as ReeLabs, ReeLabs, ReeLabs. There is another question that can we have the recording for this session? Yes, Reena, we are recording this session, and very soon we will put it up on our YouTube channel. Once I have the link ready, I will send it to you. Are you on the WhatsApp groups? In case you're not, you can just contact me on the ReeLabs account on Instagram. Okay, you're on the WhatsApp group. So fine, we will be sending the recording link out there once it's ready. Anybody has any other questions? I think we are done. Once again, we are there on Instagram. Sushma ji's Instagram handle, Sushma Jethmalani, is already on the screen. ReeLabs Instagram handle is ReeLabs on Instagram. You can, we are there on Facebook as well. So you can contact us via messaging on any of those social media accounts. um, मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ जो आज हमारे साथ इस सेशन में रहे, हमें क्वेश्चंस पूछे, पार्टिसिपेट किया। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वेबिनार्स वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। बाय थैंक यू। बाय।